السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ ایران کے خلاف جنگ جب میں چاہوں گا ختم ہو جائے گی۔ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی فوج نے ایران کو توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ہم اپنے طے شدہ وقت سے بہت آگے ہیں۔ اتنا نقصان 6 ہفتے میں بھی ممکن نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ ایران اپنی آزادی کھو چکا، اس کے پاس طیارے نہیں۔ ہم اسی طرح کام جاری رکھیں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تیل کمپنیاں آبنائے ہرمز کا استعمال کریں۔ میں نے بہت سے ممالک کے سربراہان سے بات کی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے آئندہ جارحیت کے خلاف ضمانتیں ضروری ہیں۔ کسی بھی حل میں ایران کے حقوق کی منظوری اور ہر جانے کی ادائیگی شامل ہونی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو گفتگو پر رد عمل، کہا کہ ایران خطے میں امن کے لیے پرعزم مگر اس کے جائز حقوق تسلیم کیے جائیں۔ یہ تنازع اسرائیل اور امریکہ نے شروع کیا۔ امریکی اخبار نے ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملے میں 150 سے زائد بچوں اور بچیوں سمیت 175 افراد شہید ہو گئے تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق مناپ میں اسکول پر حملہ امریکی فوج کی جانب سے ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ امریکی فوجی تحقیقات کے مطابق میزائل کے حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال اس غلطی کا باعث بنا۔ امریکی اخبار کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے افسران نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے فراہم کیا گیا پرانا ڈیٹا استعمال کیا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں اور کئی سوالوں کے جواب ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہ بھی جواب سامنے نہیں آیا کہ پرانے ڈیٹا کو ڈبل چیک کیوں نہیں کیا گیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ بچوں سے بھرے اسکول کو نشانہ بنانا حالیہ اشروں میں سب سے بڑی اور بھیانک فوجی غلطی ہے۔ امریکہ کو اکیلا ذمہ دار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹوما ہاک میزائل صرف امریکی فوج استعمال کر رہی ہے۔ مشرقی وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، روسی مندوب نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی فوجی مہم جو اسے پورا خطہ انتشار کا شکار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل لبنان میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل میں تباہی پھیر دی، درجنوں راکٹ داغ دیے۔ شمالی اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی شہری اپنی تباہی کا منظر فون پر ریکارڈ کراتے رہے۔ ایران کا عمان کی سلالہ بندرگاہ پر ڈرون حملہ، عرب میڈیا کے مطابق بندرگاہ پر موجود آئل ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں آئل ٹینکس پر آگ لگ گئی۔ عمان کے سلطان کابرنائی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سلطان حیثم بن طارق نے عمانی سرزمین کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ جاری تنازع میں اپنی غیر جانبدار پالیسی کا اعادہ کیا، کہا کہ عمان اپنی سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایران کے UAE پر امریکی ڈرون پر حملے اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر امارات چھوڑ کر جانے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ جان بچانے کے لیے ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے وطن جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، تہران، تبریز، قرس اور اصفہان سمیت دیگر شہر پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم سمیت 13 افراد شہید ہو گئے۔ اصفہان میں روسی قونصل خانہ متاثر ہو گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں پر اب تک 10,000 سے زائد حملے ہوئے، 20,000 عمارتیں متاثر ہوئیں۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ ادھر حملوں میں شہید ایرانی فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت، ایران پھر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ تہران، اصفہان، تبریز میں بمباری۔ اسرائیل اور امریکی حملوں میں شدت آ گئی، کئی شہروں میں بدترین فضائی حملے کیے گئے۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم شہید ہو گئے۔ اصفہان میں روسی قونصل خانہ متاثر ہوا۔ اسرائیل نے مغربی ایران پر حملہ کر کے کئی ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 10,000 سے زائد شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، 20,000 عمارتیں متاثر ہوئی۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر جوابی وار، 39ویں لہر میں ایرانی ہائپر سونک اور کروز میزائل اسرائیل پر
कहर बनकर टूटे। पासदारान इंकलाब ने तेल अबीब में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस मरकज़ ग्रीन पाइन रेडार सिस्टम बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमले कर दिए। इसराइली वज़ारत सेहत ने ईरानी हमलों में 24 घंटे के दौरान 33 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी है। सेहूनी जारियत, ईरान का सूद समेत जवाब, फतह खैबर शिकन अलकादिर मिसाइलों से हमला, इसराइली दिफाई निजाम फिर नाकाम, इसराइली शहर तबाही की दास्तान बन गए। पासदारान इंकलाब ने इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे के अहम यूनिट पर हमला किया। हिफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। 1 टन वॉरहेड के साथ अलकादिर मिसाइल भी दागे गए। तेल अबीब के मरकज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल बरसाए गए। मिसाइल हवाई अड्डे पर गिरने से अफरा तफरी फैल गई। इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया गया। इसराइली वजारत सेहत का कहना है कि ईरानी हमलों में 24 घंटों के दौरान 33 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने एक बार फिर खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों को निशाना बना डाला। कुवैत में अल अरीरी एयर हेलीकॉप्टर बेस और नेवल बेस को निशाना बनाया गया। अली अल सालिम बेस पर भी ड्रोन और मिसाइल हम दागे गए। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स पर भी ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि तमाम ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान ने बहरीन में भी अमरीकी बहरी अड्डे पर मिसाइल दागे। दुबई एयरपोर्ट के करीब भी ड्रोन गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान के हुकूमती मशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के ज़ख्मी होने की तरदीद कर दी है। अपने टेलीग्राम पैगाम में कहा कि इत्तला मिली थी कि मुश्तबा खामनाई ज़ख्मी हुए हैं। अपने ऐसे दोस्तों से रब्ता किया जिनके मुताल्लिका हलकों में राब्ते थे। दोस्तों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तबा खामनाई महफूज और खैरियत से हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर खैरियत से है और बिल्कुल महफूज है। ईरानी सदर के बेटे हुकूमती मशीर यूसुफ पज़ेश्कियान ने मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की तरदीद कर दी। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई गुज़श्ता दिनों इसराइली हमले में जख्मी हुए। उन्हें पैरों पर जख्म आए थे। ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक मुज्तबा खामनाई को मामूली चोटें आई है, लेकिन वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। चंद रोज कबल मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की इतलात सामने आई थी, जिसके बाद उनकी सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयां गर्दिश कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुज्तबा खामनाई जंग के आगाज में 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। ईरानी सरकारी टीवी ने मुज्तबा खामनाई को रमज़ान जंग का जख्मी मुजाहिद करार दिया। ईरान ने अपना हरमज़ के करीब मज़ीद 3 जहाज़ों पर हमला कर दिया है। थाई कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल मिसाइल लगने से निशाना बना, जिससे आग भड़क उठी। कंपनी के मुताबिक 3 क्रू मेंबर लापता हैं। एक जापानी कंटेनर शिप को रासुल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज़ को दुबई के करीब निशाना बनाया गया। दोनों जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अपना हुर्मुस में निशाना बनने वाले जहाज़ों की तादाद 14 हो गई है। अमेरिका ने अपना हुर्मुस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा कर दिया है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपना हुर्मुस में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में तेल की तरसील की शहरक, ईरान की आबनाए हरमज़ पर गिरफ्त मजबूत। अमेरिका ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद घंटों में अमेरिकी फौज ने कई कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सदर के दावे की तस्दीक करते हुए कहा कि आबनाए हरमज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियाँ खलीजी पानियों में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और तेल की सनत के नुमाइंदों को ब्रीफिंग में वाज़े किया है कि फ़िलहाल हमलों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अमेरिका जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में इक़्तिसादी मराकज़ और बैंकों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। पासदारान इंक़लाब ने बयान में कहा है कि अगर मज़ीद हमले हुए तो ईरान के अहदाफ का दायरा वसी हो जाएगा। खित्ते में गूगल और टेक कंपनीज़ पर हमले किए जा सकते हैं। आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया और उन्होंने ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। स्पेन की हुकूमत ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। स्पेन की वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने बताया कि तेल अवीव में स्पेन का सिफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर की सरबराही में काम करेगा। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के ख़िलाफ़ जंग को गैर कानूनी करार दिया था। स्पेन ने अमरीकी तैयारों को मुश्तरका फ़ौजी अड्डों से कार्रवाइयों से भी रोक दिया था। जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के ख़िलाफ़ तिजारती पाबंदियों की धमकियाँ दी थीं। बरतानिया के दर्जनों अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के क़याम की राह हमवार करने में अपने तारीख़ी किरदार पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगे। ख़त में कहा गया है कि ऐलान बाल्फोर के नताइज आज भी मशरिक़ वुस्ता में देखे जा सकते हैं। फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर तशद्दुद का सामना है। 45 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर को खत है। खत में कहा गया कि बरतानिया को अपने माजी के इक़दामात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इसराइली रियासत के क़याम से मुतालिक बिलफौर ऐलान के नताइज आज मशरिक़ वुस्ता में देखे जा सकते हैं। इस ऐलान ने बाद में ऐसे हालात पैदा किए कि जिनके नतीजे में 1948 में इसराइल कायम हुआ और फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर मुश्किलात और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत को इस तारीख़ी मुआहदे के असरात को तस्लीम करते हुए फ़लस्तीनी आवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने ही 3 दहाइयों तक फ़लस्तीन पर 1948 तक हुक्मरानी की थी। अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अफ़वाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने पाक अफ़गान सरहद ज़ोब सेक्टर में अफ़गान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया, जिसके बाद अफ़गान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फ़रार हो गए। पाक फ़ौज ने पोस्टों से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्ज़े में ले लिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है और अपने अहदाफ़ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफ़गान तालिबान और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक अफ़गान सरहद पर ज़ोब सेक्टर में अफ़गान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज की भरपूर कार्रवाई से अफ़गान तालिबान पोस्टें और असला छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी सराय का कहना है कि पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा पोस्टों से रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्ज़े में ले लिया। पाक फ़ौज शुमाली वज़ीरिस्तान से मोहलिका पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान की पोस्ट को भी निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए अफ़गान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने इस अज़म का इज़हार किया है कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है और अपने अहदाफ़ के हुसूल तक जारी रहेगा। हम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। फ़ौजी कशीदगी कम कराने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फ़ौजी कशीदगी कम कराने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास बानी तहरीक इंसाफ की सेहत और ईरान की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। शाहिद खटक और डॉक्टर ज़रक़ा के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। मौजूदा सियासी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक भी मुशावरत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी की सेहत पर 100 के करीब अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी की सेहत के मामले पर करारदाद कौमी असम्बली में पेश करेंगे। नहीं, देखो, हमने ऑलरेडी एक रिजोल्यूशन हम प्रेजेंट कर चुके हैं, वो हमारी तरफ से साइन होकर के आ चुका है। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रिजोल्यूशन आई नहीं है, तो इसलिए उनको कंसिडर किया। ईरान की सूरत हाल पर तैयार की गई करारदाद को असेंबली में पेश करने पर बात की जाएगी। करारदाद का मतन लतीफ़ खोसा ने तैयार किया है, जिसकी पार्लिमानी पार्टी में तारीफ की गई। तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ मैं आपको रेजोल्यूशन भी दूंगा। उन्होंने हमारी तारीफ की है, वो मैंने करारदाद बड़ा अप्रिशिएट किया खोसा साहब, ड्राफ्ट भी दिया है। PTI की पार्लिमानी पार्टी में एक बार फिर गर्मा गर्मी। शाहिद खटक और डॉक्टर ज़रक़ा आमने सामने आ गए। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर तल्ख़ कलामी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब गोल कर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।